ਸੱਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੈਥ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 13ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਕਰਾਂਗੇ। 13ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਮੰਥਲੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਤ ਅੰਕ ਅਤੇ ਘਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਰਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪੁੰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਜ ਹੈ ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਹੈ ਇਹ ਬਣ ਗਈ, ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੂਰਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਯੂਰੇਨਸ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰੇਨਸ ਦਾ ਪੁੰਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪੁੰਜ ਹੈ, ਯੂਰੇਨਸ ਦਾ ਪੁੰਜ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੰਜ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ? ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾਤ ਅੰਕ ਅਤੇ ਘਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਇੰਨੇ ਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ਨੀ ਤੇ ਯੂਰੇਨਸ, ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਯੂਰੇਨਸ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇੰਨੇ ਮੀਟਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਪੁੰਜ, ਯੂਰੇਨਸ ਦਾ ਪੁੰਜ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਦੂਰੀ, ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਯੂਰੇਨਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ, ਐਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਘਾਤ ਅੰਕ ਅਤੇ ਘਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਘਾਤ ਅੰਕ ਅਤੇ ਘਾਤ ਅਸਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈ 1000। 1000 ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 1000 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। 1000 ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਫਿਰ 1000 ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਦਿਆਂ ਕਿ 10 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? 1 ਵਾਰੀ, 2 ਵਾਰੀ, 3 ਵਾਰੀ। 10 ਸਾਡਾ 3 ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ 10 ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਅੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 10 ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਅੰਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ 10 ਦੀ ਘਾਤ 3। ਅਤੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹੀ ਘਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 10 ਦੀ ਘਾਤ 3 ਲਿਖਿਆ,
ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਅੰਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਘਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ 1 ਲੱਖ ਹੈ, 1 ਲੱਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿਆਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, 1 ਵਾਰੀ, 2 ਵਾਰੀ, 3 ਵਾਰੀ, 4 ਵਾਰੀ, 5 ਵਾਰੀ। 5 ਵਾਰੀ 10 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ 10 ਦੀ ਘਾਤ 5, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, 10 ਦੀ ਘਾਤ 5, ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ 10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 5। ਬੱਚੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ 10 ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਧਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 27 ਹੈ, ਔਰ 27 ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 3 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ 3 ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 3 ਦੀ ਘਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਵਾਰ ਆਇਆ, 2 ਵਾਰ ਆਇਆ, 3 ਵਾਰ ਆਇਆ, 3 ਦੀ ਘਾਤ 3, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ 3 ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ 3, ਅਤੇ ਘਾਤ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 3 ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ 125। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 125 ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੇਗਾ 5 ਗੁਣਾ 5 ਗੁਣਾ 5, ਅਤੇ ਇਸੇ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗਾ 5 ਦੀ ਘਾਤ 3। 5 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, 3 ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 5 ਦੀ ਘਾਤ 3। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 5 ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 3 ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਘਾਤ ਹੈ। ਬੱਚੋ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ -8 ਹੈ, -8 ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਅਗਰ ਬਣਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਮਾਈਨਸ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿਆਂ, ਅਤੇ 8 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉਹ ਬਣਨਗੇ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਾਂ ਕਿ -2 ਗੁਣਾ -2 ਗੁਣਾ -2। -2 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, 3 ਵਾਰੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ -2 ਅਤੇ ਘਾਤ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ 3। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਏ, 10 ਦੀ ਘਾਤ 3, ਇੱਥੇ 10 ਆਧਾਰ ਹੈ, 3 ਉਹਦੀ ਘਾਤ ਹੈ। 10 ਦੀ ਘਾਤ 5, ਇੱਥੇ 10 ਆਧਾਰ ਹੈ, 5 ਉਹਦੀ ਘਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਘਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇਗਾ। 27 ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦੀ ਘਾਤ 3 ਹੈ, ਇੱਥੇ 5 ਦੀ ਘਾਤ 3 ਹੈ, ਇੱਥੇ -2 ਦੀ ਘਾਤ 3 ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ a ਹੈ, a ਗੁਣਾ a ਹੈ, ਇਹ ਰਕਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। a ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, a ਦੀ ਘਾਤ 4, ਜਾਂ -b ਗੁਣਾ -b ਗੁਣਾ -b, -b ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, 3 ਵਾਰੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ a ਦੀ ਘਾਤ 4, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ -b ਦੀ ਘਾਤ 3। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜਾ ਘਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ। ਆਓ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ। तो बच्चों ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ
13.1 ਦਾ ਜਿਹੜਾ सवाल है वो असी करिए। पहला सवाल है हेठ लिखियां दा मुल पता करो। मैं रकम लिख लेना। पहले सवाल की पहली रकम है 2 की घात 6। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ है। ये तो बड़ा सिंपल है। ये साडा आधार है, ये साडी घात है। 2 की घात 6 मतलब कि 2 नूं 6 नाल गुणा नहीं करना। कई बच्चे इस तरह करते हैं, 2 नूं 6 नाल गुणा करते हैं। यह तुहाडा जिहड़ा सवाल है वो गलत हो जाएगा। 2 की घात 6 तो मतलब है 2 नूं 6 वारी गुणा करना। 1 2 3 4 5 6 साडा जवाब आ गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64। यह आंसर आ जाएगा। सौखा सवाल है बेटा, कोई औखा सवाल नहीं है। दूसरा सवाल जिहड़ा है वो तुसीं आप करना है। वो रकम है 9 की घात 3। तीसरा सवाल जिहड़ा है वो भी तुसीं आप करना है 11 की घात 2। ये दोनों तुसीं आप करने ने। ट्राई योरसेल्फ। मैं करांगा सवाल नंबर 4। 5 की घात 4। 5 की घात 4 तो भाव 5 नूं 4 बारी गुणा करना। 5 पाएँ 25, 25 पाएँ 125, 125 पाएँ 625। यह जवाब आएगा। ठीक है बच्चों। हुण असी दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल की है इहदा। दूसरे सवाल दे विच है कि हेठ लिखिया नूं घात अंकी रूप दे विच लिखना सी। घात अंकी रूप दे विच लिखण दा मतलब है जिस तरह पहला सवाल सी उहदा रिवर्स है, उहदा उल्टे है। जिवें पहला ही सवाल है 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6। 6 कितनी बार आया? 4 बारी। तो इसका जवाब आ गया 6 की घात 4। सिंपल। इसी प्रकार मैं एक सवाल जिहड़ा दूसरा है वो तुसीं आप करना है टी गुणा टी। तीसरा सवाल मैं तुहानूं कर देना बी गुणा बी गुणा बी 4 बारी है। असी की करना? सिंपल। बी कितनी बारी? 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी। बी की घात 4 आ गया। सिमिलरली जिहड़ा है चौथा सवाल वो भी तुसीं आप करना है। मैं तुहानूं चौथा जां फिर कर देना। यह है 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। तुसीं पहलां की करना है? 5 नूं 5 नाल गुणा किया 25 आ गया। 7 नूं 7 नाल फिर 7 नाल गुणा किया 7 7 49 7 343। तो हुण असीं 25 नूं गुणा करांगे जदों इहदे नाल 25 तियां 75 7 25 चौका 100 107 10 तो 25 तियां 75 75 ते 10 85। आई थिंक यही इहदा जवाब आएगा। देख लेना अगर गलत है तो आपे उन्होंने ठीक भी तुसीं कर सकते हो। पंजवां सवाल जिहड़ा है इहदा पंजवां सवाल असी जिहड़ा है सिंपल है 2 गुणा 2 गुणा ए गुणा ए। तो बच्चों देखो 2 दूनी 4 और गुणा ए कितनी बारी? 2 बारी ए की घात 2। जां फिर इनू असी 4 ए की घात 2 भी लिख सकते हैं। तो जिहड़ा 6वां सवाल है वो तुसीं आप करना। अपनी किताबां तो देख लियो। ट्राई योरसेल्फ। आओ तीसरे सवाल की गल करिए। हेठ लिखियां संख्यावां नूं घात अंकी संकेतन विच लिखना है। घात अंकी संकेतन। घात अंकी संकेतन दे विच लिखण तो भाव है जिस तरह असीं दूसरा सवाल किया उस प्रकार ही करना, लेकिन थोड़ा जिहा ये डिफरेंट है। जिस तरह पहला सवाल है 512। असीं की करना? पहला 512 दे बनाने गुणनखंड। असीं इहदे अभाज गुणनखंड बनावांगे और गुणनखंड बनाउण लगियां एक गल दा ख्याल रखना। सब तो पहला 2 नाल भाग करना। जो 2 नाल भाग करांगे 2 दूनी 4 1 बचिया 11 5 दूनी 10 फिर 1 बचिया 12 6 दूनी 12 फिर 2 नाल करना भाग
उन्नी देर तक 2 नाल ही भाग करते जाना जिन्नी देर तक 2 नाल भाग होना बंद ना हो जाए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया 16, 8 दूनी 16, फिर 2 नाल 6 दूनी 12। मैनूं लगता कि बच्चे आसानी नाल इनू असीं हुण तो बिल्कुल सानूं याद ही हो चुका है। फिर 2 नाल किता, फिर 2 नाल किता, फिर 2 नाल किता। साढ़े कोल 512 के गुणनखंड आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि 512 जोड़ा है वो दूए किन्ने आए साढ़े कोल 3 4 5 6 7 8 9। तो यदा मतलब यदा जोड़ा जवाब है प्रश्न का वो 2 की घात 9 है। मैं पहले भी दसिया कि यदा थोड़ा जिहा साइज़ थोड़ा बड़ा होएगा तो तुहानूं भुलेखा नहीं लगेगा। दूसरा सवाल असीं देखते हैं की है। 343 है, तुसीं आप करना है। ट्राई योर सेल्फ। 729 है, यह भी तुहाडे आप करने वाला है। तो उस तो अगला सवाल भी तुसीं आप ही करना है। 3125 ये गुणनखंड बना लेने ने। अगर तुसीं चाहो तो मैं तुहानूं करके दिखा भी दिना। चलो कर लें, इनू कर लें। यह तुसीं आप करना है। ये गुणनखंड असीं 3125 के बनाने हैं। देखो बच्चों, सब तो पहले 2 नाल भाग करना। 2 नाल तो भाग होना नहीं क्योंकि पिछे वो टांग संख्या है। यदा मतलब इस तो बाद साडी 2 तो बाद साडी बारी आती है 3 की। 3 नाल चैक करिए। 3 नाल चैक करने लिए असीं करते इस तरह ही करते हैं। 5 दे 2 7 तो 1 8 तो 3 11, क्योंकि जोड़ा जोड़ है वो भी 3 के पहाड़े में नहीं आ रहा, 3 नाल भाग नहीं हो रहा, इसलिए ये संख्या 3 नाल भी भाग नहीं होनी। उस तो बारी है बाद 5 की। असीं 5 नाल जो भाग करांगे इनू 5 6 30 हो जाएगा। 1 बच गया 12, 5 दूनी 10, 2 12 25, 5 5 25। फिर 5 नाल किता 5 1 5, 1 बच गया 12, 2 तुहानूं पता ही है। और मैनूं लगता है कुछ बच्चों को बिल्कुल ये पहाड़े पढ़न की भी लोड़ नहीं पैंदी, वो इसे प्रकार ही इनू कर देते। 3125 जोड़ा है साडा 5 गुणा 5, कितनी बारी 5 आया? 5 बारी 5 आया। तो यह मतलब 5 की घात 5 यह आंसर है। असीं इनू घाती संकेतन दे विच लिखना सी। उस तो बाद चौथा सवाल असीं करते हैं कि हेठ लिखियां दी हरेक भाग में जिथे संभव होवे वड्डी संख्या दसनी है। वड्डी संख्या दसो। एक संख्या है 4 की घात 3 तो दूसरी संख्या है 3 की घात 4। इन्हां दोनों के विचों दसनी असीं वड्डी संख्या किहड़ी है। तो बच्चों मैनूं लगता कि इस प्रकार असीं देख के नहीं दस सकते भी वड्डी किहड़ी है। सानूं इनू बदलना पवेगा, सिंपल रूप दे विच लिखना पवेगा। देखो 4 की घात 3 है, यदा मतलब 4 नूं 3 वारी गुणा करना। तो 4 नूं 3 वारी गुणा करन दे उत्ते 4 चौके 16, 16 चौके 64। 3 की घात 4 का मतलब है कि 3 नूं 4 वारी गुणा करना। 3 तियां 9, 9 तियां 27, 27 तियां 81। तो मैनूं लगता है कि असीं दस सकते हैं कि किहड़ा वड्डा इहदे विचों 81 वड्डा है जां 64 वड्डा है। ठीक है, 81 वड्डा है 64 नालों। लेकिन साडा जिहड़ा सवाल सी वो ये नहीं सी कि 81 वड्डा कि 64 वड्डा। असीं ये दसना है कि इन्हां दोनों दे विचों किहड़ा वड्डा है। तो बच्चों देख लो 81 वाली रकम तो 3 की घात 4 है, यदा मतलब 3 की घात 4 वड्डा है किहदे नालों? 4 की घात 3 नालों। तो जां इहदे विच असीं सिर्फ इन्ना भी लिख सकते हाँ कि 3 की घात जिहड़ी 4 है वो वड्डी है। इस तो बाद साडा सवाल है 5 की घात 3। ये पहला सवाल सी। दूसरा सवाल 5 की घात 3 वड्डी है जां 3 की घात 5 वड्डी है। यह तुसीं अब कर लेना आप। ट्राई योर सेल्फ। उस तो बाद तीसरा सवाल जोड़ा है वो है 2 की घात 8 वड्डा है जां 8 की घात 2 वड्डा है। देखो बच्चों असीं दोनों सवालों करके ही सानूं पता चलेगा कि किहड़ा वड्डा है।
2 ਦੀ ਘਾਤ 8 ਤੋਂ मतलब कि 2 ਨੂੰ 8 ਵਾਰੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ। 3 ਵਾਰੀ हो गया, 4 ਵਾਰੀ, 5 ਵਾਰੀ, 6 ਵਾਰੀ, 7 ਵਾਰੀ, 8 ਵਾਰੀ। ਤੇ 8 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਦਾ मतलब है 8 ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256। साडा जवाब आ गया 256। तो और ਇਹਦਾ जवाब 8 8 64। 256 ਵੱਡਾ है, इट मीनस साडा ਜਿਹੜਾ 2 ਦੀ ਘਾਤ 8 है वो ਵੱਡੀ रकम है। इस तो बाद ਜਿਹੜੇ 2 सवाल हैं 100 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਜਾਂ 2 ਦੀ ਘਾਤ 100, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ 2 ਦੀ ਘਾਤ ਜਿਹੜੀ 100 ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। 5ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ 5ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, 5ਵੇਂ ਸਵਾਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡਾਂ ਦੇ ਘਾਤ ਅੰਕ ਦੇ ਗੁਣਨਫਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 648 ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ। ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਇਹਦੇ ਬਣਾਈਏ। मैं पहले भी दस चुका है कि सब तो पहला असीं 2 नाल भाग करना है। 3 दूनी 6, 2 आ गया, 4 आ गया। फिर 2 नाल करना है, 2 1 2, 1 बच गया 12, 6 दूनी 12 तो 2 दूनी 4। फिर 2 नाल करना है, 8 दूनी 16, 2 1 2। हुण असीं देखिया कि 2 नाल तो हुण जाना नहीं है। 2 तो बाद पहला 2 की वारी सी, फिर 3 की वारी, 3 नाल इन्हें चले जाना है। 27 तियां 81, फिर 3 नाल किता 9 तियां 27, फिर 3 नाल किता 3 तियां 9। इसका मतलब 648 दे विच साडे कोल गुणनखंड बने 2 गुणा 2 गुणा 2 ते 3 कितनी वारी है, 4 वारी है। इसका मतलब साडा इन्हां नूं गुणा करन तो बाद साडा जिहड़ा आंसर है वो 648 बनता सी। इन्हां नूं असीं घातंकी गुणनफल के रूप में लिखना है। किस तरह लिखना है, क्योंकि 2 कितनी बारी आया है, 3 बारी। 2 की घात 3, 3 कितनी बारी आया है, 4 बारी। 3 की घात 4, यही इसका आंसर है। सवाल नंबर दूसरा है 405। ये तुसीं आप कर लेना है। 540 है। तो चौथा सवाल जोड़ा है, चौथा सवाल मैं कर देना 3600 हो गया। 3600 के असी गुणनखंड बनाने ना। 2 नाल किता 2 1 2, 1 16, 8 2 16, 1800 आ गया। फिर 2 नाल किता 900 आ गया। फिर 2 नाल किता 450 आ गया। फिर 2 नाल किता 2 2 दूनी 4, 1 बच गया 10, 5 दूनी 10। फिर 3 की वारी आ जानी है ना। 2 2 4 तो 5 9, 3 की वारी आ गई 7 तियां 21 15 तो 5 तियां 15। फिर 3 25 तो फिर 5 5। इसका मतलब जो 3600 के गुणनखंड साढ़े को बने 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बारी, सॉरी 4 बारी है। 3 कितनी बारी है, 2 बारी है। तो 5 भी 2 बारी है। 2 कितनी बारी आया, 4 बारी। 3 कितनी बारी आया, 2 बारी। 5 कितनी बारी आया, 2 बारी। यही दा आंसर है। एक गल होर बच्चों, इसी सवाल नूं असीं सैकेंड मैथड दे नाल भी करन दी कोशिश करते हैं। 3600 के गुणनखंड बनाने के लिए जे मैं इस तरह लिख ला इनू 36 गुणा 100, तो तां भी 36 नूं मैं 9 चौका 36 लिख सकना। 100 नूं मैं 10 गुणा 10 लिख सकदा। इनू मैं 3 गुणा 3 लिख दिता। इनू मैं 2 गुणा 2 लिख दिता। 4 नूं इस 10 नूं मैं 2 गुणा 5 लिखिया। इस 10 नूं मैं 2 गुणा 5 लिखिया। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਕਿੰਨੇ ਨੇ, 1 2 3 4।
2 ਦੀ ਘਾਤ 4। 3 ਕਿੰਨੇ ਹੈ 2, 1 ਤੇ 2, 3 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਤੇ 5 ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ 2। ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। तो बच्चों ਇਹ सवाल ਜਿਹੜੇ मैं 2 ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨੇ ਨੇ 405 ਤੇ 540। आओ ਹੁਣ 6ਵਾਂ सवाल देखिए की है। सरल करो। सरल करो ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ है, मैं पहला नहीं करता, चलो ਤੁਸੀਂ आपे करना है। मैं दूसरा कर देना 7 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਗੁਣਾ 2 ਦੀ ਘਾਤ 2। ਇਹ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਰਿਵਰਸ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਉਲਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਉਲਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਉਲਟ ਹੈ। 7 ਦੀ ਘਾਤ 2 मतलब 7 ਗੁਣਾ 7, 2 ਦੀ ਘਾਤ 2 मतलब 2 ਗੁਣਾ 2 ਤੇ 7 7 49, 49 ਗੁਣਾ 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4 है ना। 9 चौका 36, 3 ਤੇ 4 चौके 16, 16 ਤੇ 3 19, 196 ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। इसी प्रकार तुसीं पहला सवाल भी कर लेना है। 6वें का होर सवाल मैं कोई देखदा। 6वें का जिहड़ा चौथा सवाल है ये तुसीं आप करना है। 3 गुणा 4 की घात 4, बड़ा ईजी सवाल है, ये कर लेना है। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ तीसरा सवाल है वो भी तुसीं आप ही कर लेना है। मैं स्टेटमेंट वैसे ऊपर लिख दिना, पर तुहाडी किताब दे विच सारा कुछ दिता होया है। 5वां सवाल बड़ा ईजी है। 0 गुणा 10 की घात 2, 0 आ गया, 10 गुणा 10 आ गया, 100 आ गया, 100 ਦੀ आ गया। लेकिन इस तो पहला ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ इस तरह लिखने 0 गुणा 100 आ गया तो जवाब ही आ गया, क्योंकि 0 ਦੇ ਨਾਲ किसी भी रकम ਨੂੰ मल्टीप्लाई करने के उत्ते आंसर कितना आंदा है 0 आंदा है। इस तो बाद अगले सवाल ਜਿਹੜੇ ਨੇ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 7ਵਾਂ ਤੇ 8ਵਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ 7ਵਾਂ। 7ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਲ ਕਰੋ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ -4 ਦੀ ਘਾਤ 3। देखो बच्चों बड़ा ईजी सवाल है। -4 की घात 3 का मतलब -4 गुणा -4 गुणा -4। इस सवाल को असी इस तरह भी लिख सकते हाँ, -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4। तो जां फिर असी इन्हों सीधा भी कर सकते हैं, लेकिन चलो असी इस तरीके नाल करते हैं। -1 नूं -1 दे नाल गुणा किया, ये आ गया जी 1, साडे कोल अजे -1 1 बच गया। तो 4 चौके 16 चौके 64, 64 ये आ गया। जो 64 नूं असी -1 दे नाल गुणा किया तो जवाब की आ गया -64। ठीक है बच्चों, इत्थों भी असी सीधा भी इनू कर सकते सी, इत्थों असीं सीधा ही 4 चौके 16, 16 चौके 64 आ गया। इस माइनस के नाल ये माइनस जिहड़ी है जदों मल्टीप्लाई हुई तो प्लस हो गई, तो यह वाली माइनस साढ़े कोल इत्थे आ गई। असी सवाल तुहाडा पहला। हुण असी दूसरा सवाल जिहड़ा है वो देखते हैं की है। -3 गुणा -2 तो इस -2 की घात है 3। तो बच्चों ये बड़ा सिंपल मैनू लग रहा है। -3 तो -2 जोड़ा है 3 बार लिखना है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24। इस माइनस के नाल यह माइनस जी साड़ी मल्टीप्लाई हो गई प्लस हो गई, तो इस दे नाल यह प्लस हो गई, तो जवाब जोड़ा है 24 ही आ गया, प्लस आ गया। 7वें सवाल का एक अद्धा सवाल असी होर करने, उसके बाद असी 8वां देखते हैं। फिर चौथा सवाल मैं तुहानूं कर देना, तीसरा तुसीं आप ट्राई कर लैनी। -2 की घात 3 तो -10 की घात 3। देखो -2 इनू ब्रैकेट दे विच पा लो। -2 3 बारी हो गया,
तो -10 कितनी बारी हो गया, 3 बारी। 2 दूनी 4 दूनी 8 तो 8 तो ये आ गया 1000, जवाब आ गया 8000। सीधा कर लिया। हुण असीं माइनस लिख लेना, ये नाल ए प्लस हो गया, ये नाल ए प्लस हो गया, ये नाल ए प्लस हो गया, जवाब आ गया 8000। सिंपल सवाल है, ये सारे दे सारे तुसीं करने आ। लास्ट इस एक्सरसाइज का 8वां सवाल, हेठ लिखियां संख्यावां की तुलना करनी है। असीं तुलना करन तो भाव कि किहड़ी वड्डी है किहड़ी छोटी है। देखो बच्चों, इन्हां दोनों दे विचों मैं तुहानूं एक सवाल कराना, एक तुसीं आप करना। 2.7 गुणा 10 की घात 12 तो दूसरी रकम है 1.5 गुणा 10 की घात 8। देखो यह रकम वैसे भी वड्डी है ये नालों, लेकिन असी इनू ना देखते हुए इनू नैगलीजिबल तौर पर देखांगे असी, लेकिन असी बाई ऑबजरवेशन ही देखा कि 10 की घात 12 मतलब कि 10 12 बारी गुणा होना है, इत्थे 10 ने 8 बारी गुणा होना है, तो डेसीमल जोड़ा बराबर है। यदा मतलब कि यह जी रकम है ये वड्डी है। फिर भी अगर तुसीं चाहते हो तो मैं इनू तुहानूं मैं गुणा करके भी दस दिना। 10 की घात 12 का मतलब कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो 12 नाल गुणा करना है। 1.5 10 की घात 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जेकर असीं इन्हां नूं दोबारा भी लिखीए तो जिहड़ा साडा पहला सी वो ये आएगा, साडा यह जिहड़ा डेसीमल है ये साडा इत्थे चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, तो साडा जवाब आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इत्थे डेसीमल आ गया। दूजे पासे साडे कोल 15 1 2 3 4 5 6 7 8 8 से ना, हाँ 8 आ गया। डेसीमल साडा कित्थे आ गया, इत्थे आ गया।